आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 4 ऑफ BHUMS फिजियोलॉजी इन ट्रांस पेपर 2016. So keep watching this video till in for better preparation. Question number 91. A protein domain represents a tertiary structure, quaternary structure, secondary structure, random coiled unit. So correct answer is option 1. प्रोटीन डोमेन जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है. क्वेश्चन नंबर 92. The KMF an enzyme is a constant expressed in terms of substrate concentration, equilibrium constant, rate of catalyzed reaction or turnover number. So correct answer is option 1. एंजाइम की जो Km वैल्यू है वो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस करती है. क्वेश्चन नंबर 93. Citrate is not a structural analog of the substrate of enzyme phosphofructokinase 1. यानी citrate जो है वो phosphofructokinase के substrate के साथ कोई structural similarity नहीं रखता, but it inhibits the activity of this enzyme. लेकिन इसके बावजूद भी ये phosphofructokinase की एक्टिविटी को inhibit कर देता है. This could be an example of the enzyme regulation due to allosterism, reversible covalent modification, irreversible covalent modification, irreversible non-covalent modification. So correct answer is option 1. एलोस्टोरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. Question number 94. Kinases represents a subclass which of the major class of enzyme? Oxidoreductases, transferases, lyases, isomerases. So correct answer is option 2. ट्रांसफेरेजेस ऐसे एंजाइम हैं जो कि ग्रुप ट्रांसफ़र करती हैं, तो काइनेजेस भी एक तरह के ट्रांसफेरेजेस हैं क्योंकि ये फास्फेट ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं. क्वेश्चन नंबर 95. Which of the following best represent a heteropolysaccharide? Poly-N-acetyl glucosamine or polyglucuronic acid or polygalactosamine or polyglycosaminoglycan. So correct answer is option 4. heteropolysaccharide के अंदर जो है वो polyglycosaminoglycan present होते हैं. Question number 96. Alpha D glucose and beta D glucose are epimer, anomers, enantiomers और cis trans isomers. So correct answer is option 2. अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के एनोमर्स हैं. एनोमर्स ऐसे मोनोसेक्राइड्स होती हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 97. The glycolytic product enters in the TCA or tricarboxylic acid cycle in the form of citrate, pyruvate, oxaloacetate और acetyl coenzymes. So correct answer is option 4. जो ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट इंटर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल के अंदर तो वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. क्वेश्चन नंबर 98. Which one is not an intermediate of the TCA cycle? Thiosuccinate, succinate, succinyl coenzyme A और aconitate. So correct answer is option 1. थायोसक्सिनेट जो है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 100. इन केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ATP synthesis, which one serve as coupling factor between oxidation and ADP phosphorylation? Proton, इलेक्ट्रॉन, फॉस्फेट्स और NADH. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. प्रोटॉन जो है वो कपलिंग फैक्टर के तौर पर काम करता है बिटवीन ऑक्सीडेशन एज वेल एज ADP फॉस्फोरिलेशन. क्वेश्चन नंबर 101. विच वन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंपल लिपिड्स? ग्लाइसरोल, ग्लाइसरेट, ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरोएसीटेट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स जो है वो सिंपल लिपिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. क्वेश्चन नंबर 102. द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड और हाइड्रोजन bonds, carbon-carbon covalent bonds. So correct answer is option 3. The two strands of DNA are held together by means of hydrogen bond. Question number 103. A sign-oriented base can be found in aDNA, bDNA, zDNA or triple helix. So correct answer is option C. जो साइन ओरिएंटेड बेस है वो zDNA के अंदर प्रेजेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 104. A double-stranded DNA assumes helix formation, but double-stranded RNA makes a non-helical stem structure. This is mainly due to the presence of 2 hydroxyl in the ribose of RNA
are U in the place of T in the RNA, are modified bases in the RNA, are sign-oriented bases in the RNA? So correct answer is option 1. The 2' hydroxyl group in RNA is mainly responsible for non-helical stem structure of double-stranded RNA. क्वेश्चन नंबर 105 SNRPs और SNRP जो है वो प्रोटीन्स हैं स्पेशल किस्म की. दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग न्यूक्लियोसोम्स, प्राइमोसोम्स, एपेप्टोसोम्स और स्प्लायोसोम्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. SNRPs जो है या SNRNP जो प्रोटीन्स हैं ये स्प्लायोसोम्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं और स्प्लायोसोम्स को बनाती हैं और ये स्प्लायोसोम्स जो है वो RNA स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होते हैं. Question number 106. Promoter of a gene is reported to be present at -35 position. That means this sequence is located at downstream region, upstream region, or transcription start site, or trans-acting element of the gene. So correct answer is option 2. कि अगर आपके पास जो प्रमोटर है वो स्टार्ट साइट से आगे की तरफ है तो फिर तो वो पॉजिटिव होगा और उसको डाउन स्ट्रीम रीजन कहेंगे. लेकिन अगर प्रमोटर रीजन जो है वो जीन के स्टार्ट साइट से पीछे की तरफ है तो फिर वो नेगेटिव होगा और उसे अपस्ट्रीम रीजन कहेंगे. तो अगर प्रमोटर लोकेटेड है -35 पोजीशन पे तो इसे हम नाम देंगे अपस्ट्रीम रीजन का. क्वेश्चन नंबर 107 का The smallest peptide hormone is TSH, thyrotropin releasing hormone, or FSH or ACTH. So correct answer is option 1. Thyrotropin releasing hormone जो है वो एक smallest peptide hormone है. Question number 108. Which is not a glycoprotein hormone? FSH, LH, ACTH or TSH. So correct answer is option 1. ACTH और एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन नहीं है, रेदर ये क्या है एक पेप्टाइड हार्मोन है. क्वेश्चन नंबर 109. द प्रेगनेंसी ऑफ विच प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन इन द यूरिन इज़ यूज्ड एज द मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी? LCG, FSH, STH और एस्ट्रोजन. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1. HCG हार्मोन जो है वो अगर यूरिन के अंदर है तो वो इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का. क्वेश्चन नंबर 110. द 3 लेयर्स ऑफ एड्रिनल कार्टेक्स इन करेक्ट सीक्वेंस आर ज़ूना ग्लोमेरुलोसा सबसे पहले, फिर ज़ूना फेसिकुलेटा और फिर ज़ूना रेटिकुलरिस. ऑप्शन 2. ज़ूना फेसिकुलेटा, फिर ज़ूना ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद ज़ूना रेटिकुलरिस. और ऑप्शन 3. ज़ूना ग्लोमेरुलोसा और ज़ूना ग्रेनुलोसा, फिर ज़ूना फेसिकुलेटा. ऑप्शन 4. ज़ूना ग्लोमेरुलोसा पहले, उसके बाद ज़ूना फेसिकुलेटा और फिर उसके बाद ज़ूना रेटिकुलरिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कि जो एड्रिनल कार्टेक्स के अंदर सेल्स की जो 3 लेयर्स हैं उनकी सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि सबसे आउटर मोस्ट जो है ज़ूना ग्लोमेरुलोसा है, फिर उसके अंदर की तरफ ज़ूना फेसिकुलेटा और उसके अंदर की तरफ ज़ूना रेटिकुलरिस. क्वेश्चन नंबर 111. रैथ के पाउचेज इज़ एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड और पैंक्रियाटिक आइलेट्स. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1. जो रैथ के पाउचेस हैं ये आउट पोचिंग हैं बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की. क्वेश्चन नंबर 112. मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, मेलानिन और हिस्टामाइन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. मेलाटोनिन हार्मोन जो है उसका प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड और ये मेलाटोनिन रिलीज़ होता है पाइनियल ग्लैंड से और इसका काम होता है स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करना. Question number 113. According to the two-cell theory of estrogen production, androgens are aromatized to estrogen in thecal cells, granulosa cells, chief cells और Leydig cells. So correct answer is option 2. granulosa cells के अंदर aromatase एंजाइम होते हैं जो कि एंड्रोजन को एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. Question number 114. The deficiency of which hormone results in diabetes insipidus? तो डायबिटीज़ इंसिपिडस बेसिकली एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन है और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन. सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 2. वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाती है.
क्वेश्चन नंबर 115, विच वन इज़ नॉट अ हार्मोन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, ACTH, ADH or FSH or MSH? So correct answer is option 2. एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी भी कहते हैं और इससे जो ADH रिलीज़ नहीं होता, क्योंकि ADH रिलीज़ होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। Question number 116. Secretion of which hormone from pars distalis is increased during stress? ACTH, FSH, TSH or STH? So correct answer is option 1. एड्रीनोकार्डिकोट्राफिक हार्मोन जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 117. सोमैटोस्टैटिन इज सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियाटिक अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. सोमैटोस्टैटिन जो है वो पैंक्रियाटिक डेल्टा सेल से रिलीज़ होता है और इसका इनहिबिटरी इफ़ेक्ट होता है अल्फ़ा सेल्स पे और बीटा सेल्स पे, तो इस तरह से ये इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। Question number 118. The secretion of which hormone from the adenohypophysis is under an inhibitory control of hypothalamus? MSH, TSH, FSH or ACTH? So correct answer is option 3. Follicle stimulating हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और इसकी जो सिक्रीशन है वो हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल होती है। हाइपोथैलेमस जो है GnRH रिलीज़ करता है जो कि इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है या इंक्रीज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 119. Which one is not a peptide hormone? Insulin, epinephrine, oxytocin, inhibin? Correct answer is option 2. Epinephrine पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, रेदर ये कैटकोलामाइन है या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 120. Slow block to polyspermy results in removal of sperms from the vital line membrane. It is accomplished by change in membrane potential or cortical reaction, acrosomal reaction or GPI interaction. So correct answer is option 2. स्लो ब्लॉक टू द पोलिस्पर्मी जो है वो बेसिकली कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 121. Xenopus gastrulation is initiated in the region of opposite to the point of sperm entry or near the vicinity of sperm entry or in the middle of the animal pool or at the tip of the posterior pole. So correct answer is option 1. जो गैस्ट्रोलेशन है जीनोपस के अंदर वो फ्यूचर डॉर्सल साइड पे होती है जो कि अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री वाला रीजन होता है।